السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش بھی ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک نیا ناول۔ یہ بہت لمبا ناول نہیں ہے، چھوٹا سا ناول ہے، اور اس کا نام ہے دل تو نے چرا لیا، اور اس کو لکھا ہے زون شاہ نے۔ اور میں بھی یہ ناول جو ہے فرسٹ ٹائم ریڈ کر رہی ہوں، اور پتہ نہیں یہ پڑھنے میں کیسا ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ناول کیسا ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ ماہی بیٹا کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ راشدہ بیگم اس کی ڈریسنگ پر نگاہ دوڑاتی ہوئی بولی، جو کہ نہایت ہی نازیبا لباس میں تھی۔ ماہین منہ بنا کر پلٹی۔ آپ کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہزار دفعہ منع کیا ہے کہ مجھ سے یہ فضول سوالات نہ پوچھا کریں۔ پہلے کبھی جواب دیا ہے جو اب جواب دوں گی؟ وہ بدتمیزی سے کہتی چلی گئی۔ پیچھے راشدہ بیگم افسوس سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ ماہین بلا شبہ بہت حسین تھی۔ دودھ سی نکھری رنگت، پشت پر پھیلے لمبے کالے سلکی بال، متناسب سراپا، اور اس کی بے نیازی اسے سب سے الگ بنا رہی تھی۔ بس وقت نے اسے تھوڑا ضدی اور سرکش بنا دیا تھا، اور کچھ راشدہ بیگم کی نفرت نے۔ دراصل راشدہ بیگم ماہین کی سوتیلی ماں تھی۔ ذوالفقار صاحب کو تو راشدہ بیگم سے شادی کے 3 سال بعد ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی کلب پہنچی، جیمی کو دیکھ کر اس کا موڈ اچھا ہو گیا۔ "Hey جیمی، how are you?" "Well, I'm good, but تم کچھ خاص خوش نہیں لگ رہی." جیمی نے اس کا اوپر سے نیچے تک کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ "نہیں یار، تم تو جانتے ہی ہو اس سلی لیڈی کو جو میرے گھر میں رہتی ہے." ماہین نے منہ بنا کر کہا۔ "اچھا خیر، چلو چھوڑو انہیں، چلو چل کر ڈانس کرتے ہیں." وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈانس فلور پر لے گیا۔ "ابے سالے، آج کا کیا موڈ ہے؟ یہیں سے پسند کرے گا یا جو لیانا سے کہہ کر بک کرواؤں کسی کو؟" حماد نے کمینگی سے آنکھ دبا کر سالار مصطفیٰ سے کہا تھا۔ سالار مصطفیٰ جو اپنے نام کی طرح ہی شاندار تھا، ماں باپ کا اکلوتا لاڈلا تھا۔ گندمی رنگت، ماتھے پر آتے بال، نشے میں ڈوبی آنکھیں اسے اور شاندار بناتی تھیں۔ حماد اسے اس کے نام کی وجہ سے ہی سالے کہتا تھا۔ "چھوڑ تو جولیانا کو، وہ دیکھ سامنے بلیک ڈریس والی کو." وہ ماہین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اب دیکھ تیرا بھائی کیسے سیٹ کرتا ہے اس کو." کہتے ہی سالار ماہین کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جیمی کے ساتھ کپل ڈانس کر رہی تھی کہ اس کو اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ مڑی ہی تھی کہ اس کا پیر لڑکھڑایا، اور اگلے ہی لمحے وہ سالار کی باہوں میں تھی۔ بیوٹیفل۔ اپنی انگلیوں سے اس کے بال اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکلا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ "What's your good name, sweetheart?" سالار نے پھر ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے پوچھا تھا۔ اس نے اس پر ایک تیکھی نگاہ ڈالی اور بنا کچھ کہے واپس جانے لگی۔ سالار نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دیا تو وہ اس کے سینے سے لگی۔ وہ فوراً ایک جھٹکے سے دور ہوئی۔ "What the hell you are doing? Stay away from me and just leave my hand." اس کے تو جیسے کسی نے آگ لگا دی۔ "If I not?" اس نے ایک آئیبرو اوپر اٹھا کر پوچھا۔ "تو پھر یہ کہتے ہی اس نے اپنا دوسرا ہاتھ سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ سالار کی اس کے ہاتھ پر گرفت ہلکی ہوتی محسوس کر کے وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتی چلی گئی۔ وہ اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے لال آنکھیں لیے وہیں کھڑا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے باہر ٹیبل پر ہاتھ مارا اور چلایا تھا، "You have to pay for this, silly girl." اور وہاں سے چلا گیا۔ "یار ماہی، تم نے اچھا نہیں کیا بیچارے کے ساتھ، اس نے صرف ہاتھ ہی تو پکڑا تھا نا." جیمی صبح ہوتے ہی اس سے ملنے چلا آیا تھا۔ "تم تو چپ ہی کر جاؤ، ایسے معاملوں میں کیسے بھیگی بلی بن جاتے ہو؟ دوست ایسے ہوتے ہیں کیا؟" اس کے حد امیز لہجے پر پل میں جیمی کا چہرہ لال ہوا تھا، اور بات صرف ہاتھ پکڑنے کی نہیں تھی۔ "He was insulting me." پھر بھی ماہی، تم جانتی بھی ہو وہ کتنے بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے، جتنے بھی بڑے بزنس مین کا بیٹا ہو۔ میری بلا سے ماہین ذوالفقار کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس نے بال جھٹک کر لاپرواہی سے کہا۔ جیمی اس کی لاپرواہی پر افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ لاپرواہی کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ "مجھے اس لڑکی کی پوری انفارمیشن چاہیے، وہ بھی آدھے گھنٹے کے اندر." "پر سالے اتنی جلدی؟"
حماد جھنجھلاتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس تک پہنچا. جو کہہ دیا سو کہہ دیا, نو آرگومنٹ. ایک تو اپنی آگے کسی کی سنتا نہیں ہے. حماد بڑبڑاتا ہوا آفس سے نکل گیا. تم نہیں جانتی تم نے کس سے پنگا لیا, سلی گرد زیر لب کہتا وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گیا تھا. آدھے گھنٹے بعد اس کی ٹیبل پر ماہین کی ساری انفارمیشن تھی. مس ماہین ذوالفقار, تیار ہو جاؤ, میں آ رہا ہوں. زیر لب مسکراہٹ تھی. وہ باہر جانے کو تیار کھڑی تھی. مرر کے سامنے کھڑی, لپسٹک کو آخری ٹچ دیتی, اونچی ہیل پہنے, بلو جینز پر وائٹ ٹاپ, اس پر ریڈ جیکٹ پہنے, بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی. ماہی بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ ماہین جھنجھلاتی ہوئی مڑی. آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے ایسے سوالات نہ پوچھا کرے, بدتمیزی سے کہتی وہ جانے لگی. ماہی رکو. ان کی آواز سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی, پر مڑی نہیں. وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور بولی, ماہی تمہارے مجھ سے اختلافات الگ بات ہے, لیکن آج نہ جاؤ کہیں, میرا دل گھبرا رہا ہے. ان کی بات سن کر ایک پل کو اس کا دل بھی گھبرایا تھا, پر اس نے اپنے دل کو ڈانٹا اور بولی, آپ فضول تہمات کا شکار ہیں. آپ فضول وہمات کا شکار ہیں, اور آپ کے ان فضول وہموں میں آ کر میں اپنا ڈے سپوائل نہیں کر سکتی. سوری, مجھے یہ لڑکی شام تک, یہ لڑکی اپنے فارم ہاؤس پر چاہیے. فوٹو میں نے تم کو سینڈ کر دی ہے. اوکے سر, کام ہو جائے گا. گڈ. یہ کہہ کر اس نے فون رکھا. اب پتہ چلے گا تمہیں مس ماہین ذوالفقار کے سالار مصطفیٰ ہے کیا چیز. یہ کہتے ہوئے زیر لب مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک تھی. خیر تو ہے, آج میرا بیٹا بڑا مسکرا رہا ہے. حماد نے آفس میں داخل ہوتے اسے مسکراتے دیکھا تو پوچھنے لگا, نہیں یار کچھ نہیں, تو بتا تو یہاں کیسے؟ تجھ سے ملنے کا دل کیا تو آ گیا. تو بتا انکل انٹی کا کب کا پروگرام ہے لندن سے واپسی کا؟ ابھی کہاں, ابھی 1 مہینے پہلے ہی تو گئے ہیں. 1.5-2 مہینے سے پہلے تو واپسی کا نو چاند. یہ کہتے ساتھ ہی اٹھا. تجھے بیٹھنا ہے تو تو بیٹھ, میں تو چلا. کیا کوئی خاص کام ہے جو تو مجھے بھی چھوڑ کر جا رہا ہے؟ مسکراہٹ دبا کر آنکھیں مارتے ہوئے کہا. تو نہیں سدھرے گا. افسوس سے سر ہلاتا وہ نکل گیا. وہ کار ڈرائیو کر رہی تھی کہ اس کو لگا کوئی اس کو فالو کر رہا ہے. اور نو, اب کیا کروں؟ ہاں ایک کام کرتی ہوں, جیمی کو کال کرتی ہوں. وہ جیمی کا نمبر ڈائل کرنے لگی. جیمی پک اپ دا کال. یار جیمی کال پک نہیں کر رہا تھا. اب کیا کروں؟ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ پچھلی گاڑی نے اوورٹیک کیا اور اس کو بریک لگانا پڑے. اللہ اللہ پلیز مجھے بچا لے. وہ گڑ گڑائی. اتنی دیر میں سامنے والی گاڑی سے 3 ماسک پہنے آدمی اترے اور اس تک پہنچے. چھوڑو مجھے, کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے یہ کہہ کر اس کے منہ پر جھپٹا مارا, لیکن ہاتھ اس کے چہرے تک پہنچنے سے پہلے ہی ان میں سے ایک نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا. یس باس, ہو گیا کام, اب کیا کرنا ہے؟ ہوش آنے پر یہ پہلا جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا تھا. اس کے بعد اسے کوئی آواز نہیں. شاید بات کرنے والا اب دور چلا گیا تھا. اتنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو خود کو ایک کمرے میں پایا. ویل فرنشڈ کمرہ تھا, پر کمرے میں کسی کھڑکی کا نام و نشان تک نہیں تھا. اسے وہاں قید ہوئے 3 دن ہو گئے تھے, اور یہ بات بھی اسے اس کام والی سے معلوم ہوئی تھی جو روز اس دن میں 2 دفعہ کھانا پہنچانے آتی تھی, ورنہ یہاں بھلا دن رات گزرنے کا کسے علم ہونا تھا. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ دھار سے کھلا. وہ سکتے میں آ گئی کہ کیا واقعی اس کا مارا ہوا تھپڑ بھاری پڑنے والا تھا؟ ہاں, میں سالار مصطفیٰ. کیوں حیرانی ہو رہی ہے ماہین ذوالفقار؟ یاد ہے تم کو وہ تھپڑ جو تم نے بھری محفل میں میرے سالار مصطفیٰ کے اس گال پر مارا تھا؟ اس کا بھگتان تو تم کو بھگتنا پڑے گا. اس نے اپنے دائیں گال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اس کی طرف قدم بڑھانے لگا. نہیں دیکھو, غلطی تمہاری بھی تھی. تم نے میرا ہاتھ پکڑا تھا. اس کے لفظوں نے تو جیسے اس کی جان نکال دی تھی. وہ تو میں اب بھی پکڑوں گا, لیکن اب تم تھپڑ مارنے کے قابل نہیں رہو گی. وہ کہتا اس کی طرف جھکا تھا. اس نے زور سے آنکھیں میچی. کچھ دیر تک کچھ نہ ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ جا چکا تھا. ہائے اللہ, چلا گیا. شکر ہے. ابھی اسے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ملازمہ آ گئی. بی بی جی صاحب نے کہا ہے کہ آپ یہ جوڑا پہن کر تیار ہو جائیں. اس نے دیکھا اس کے ہاتھ میں بہت ہی ہیوی لال رنگ کا جوڑا تھا. کیوں, تمہارے صاحب کے نکاح میں شرکت کرنی ہے؟ اس نے تڑک کر کہا تھا. ہاں نا بی بی جی, آپ سے ہی تو ہو رہا ہے صاحب کا نکاح. کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ نکاح کروں گی میں, وہ بھی اس سے. پاگل ہو گیا ہے تمہارا صاحب. جاؤ جا کر. وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ اس کی نظر ملازمہ کے پیچھے کھڑے سالار پر پڑی. کیا بول رہی تھی, ذرا دہرانا. اس نے اندر آتے ہی ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور پاس آتے ہوئے بولا,
कुछ नहीं, मैं क्या बोल रही थी? कुछ भी तो नहीं, मुझे क्या बोलना है? वो हिचकिचाकर पीछे हटते हुए बोल रही थी। और हाँ, दूर रहकर बात करो। वो इसे करीब आते देखकर बोली। वो रुका। अगर तुम चाहती हो कि मैं दूर रहूं तो 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ। कि वो कहकर वो जाने लगा। देखो ये गलत है, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था ना, मैं इसके लिए सॉरी हूँ। बल्कि तुम एक काम करो, तुम मुझे भी थप्पड़ मार लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। इसकी बेबसी इसके लफ्जों से अयां हो रही थी। सालार मुड़ा। ओ, रोना नहीं। वैसे पहले मैंने भी यही सोचा था कि बदला लेकर तुमको चलता करूंगा, लेकिन फिर पता है क्या, वो इसके पास आया, दीवार पर हाथ रखकर झुकते हुए इसकी आंखों में झांक कर बोला। क्लब में जब तुमने इतने लोगों के दरमियान थप्पड़ मारा था ना, जब मैंने लोगों की मजाक उड़ाती हुई नजरें महसूस की थी, इन नजरों ने ना मेरे अंदर एक आग लगा दी थी, नफरत की आग। अब उस आग में तुम जलोगी सारी जिंदगी। निकाह नहीं करना ना करो, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन रहना तो तुमने यही है सारी जिंदगी, बगैर निकाह के ही सही। नफरत और हकारत से कहता पीछे हटा। उसके लहजे में नफरत देखकर पल भर को वो कांप गई थी। मैं तुमसे निकाह कैसे कर सकती हूँ? मुझे वापस जाना है, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो गिड़गिड़ाई। तुम्हारा इंतजार कौन कर रहा होगा? तुम्हारा इंतजार? इसने मजाक उड़ाते हुए कहा। जिमी जिमी कर रहा होगा ना मेरा इंतजार। और मामा भी कर रही होंगी ना मेरा इंतजार। उसने शायद जिंदगी में पहली दफा राशिदा बेगम को मामा कहा था। जिमी, तुम पागल वागल हो गई हो? वो जिमी जो इन 3 दिनों में तकरीबन रोज ही क्लब पार्टी अटेंड कर रहा है। जिमी, इसको हैरानगी हुई। वो तो हर वक्त उसके आगे पीछे फिरता था। वो क्या था? वो तो मुझसे मोहब्बत करता था। उसका क्या? क्या वो सिर्फ ड्रामा था? वो सदमे में थी। लेकिन मामा मामा तो कर रही होगी ना मेरा इंतजार। ये ख्याल आते ही इसमें जान वापस आई थी। नहीं, तुम्हारी मामा भी नहीं कर रही होंगी। इसने धीमे से कहकर माही की खुशफहमी के बुत को तोड़ा था। और फिर जो उसने कहा वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। तुम्हारी मम्मा की डेथ हो चुकी है, इसने बहुत धीमे अंदाज में बोला था, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं इसे यह एहसास भी था कि इस सब में कहीं ना कहीं इसका भी कसूर है। व्हाट? क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो हारे हुए खिलाड़ी की तरह सर हाथों में दिए घुटनों के बल बैठी थी। हाँ, ये ठीक है कि इसने इन्हें कभी अपनी मामा नहीं माना था, पर दिल में कहीं न कहीं वो इनसे बहुत प्यार करती थी। इन्होंने सारी ज़िंदगी इसकी ज़रूरतों का ख़्याल रखा था, इनकी इतनी बदतमीज़ियाँ और शदीद नफ़रत को बर्दाश्त किया था। यानी वो सामने खड़ा शख्स यही तो कह रहा था कि इसका इंतज़ार करने वाला इसका कोई अपना है ही कहाँ उसके पीछे। कुछ ख्याल आने पर इसने झटके से अपना सर उठाया। तुमने मारा है मामा को। तुमने मुझे अगवा किया, जिसकी वजह से मामा वो धाड़ी थी। लेकिन इसकी बात मुकम्मल होती इससे पहले ही वो करीब आया। इसकी कमर में हाथ डालकर झटका दिया तो वो उसके सीने से आ लगी। दूसरे हाथ से जब जबड़ा दबोचे, अपनी आग उगलती नजरें उसके चेहरे पर गाड़े, सर्द लहजे में गोया हुआ। मैं नहीं, तुम हो उनकी मौत की जिम्मेदार। जिस वक्त जरूरत थी उनको तुम्हारे, इस वक्त तुम अपनी अयाशी के घर से निकली थी। रोका ना था उन्होंने तुम्हें? हाँ बोलो, रोका था ना? और तुम वो अफसोस से बोलता पीछे हुआ था। वो इनके इंतकाल का सुनकर गया था इनके घर। तो मुलाजमों ने माहीन की बदतमीजियों की दास्तानें खूब नमक मिर्च लगाकर सुनाई। शायद वो भी इससे बहुत तंग थे। इन आंसुओं को बचा कर रखो, आगे बहुत काम आएंगे। और 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ, वरना मुझे अपने तरीके से इंतज़ाम करना आता है। वो खबरदार करता चला गया था। काफ़ी देर रोने के बाद वो उठी। उसका कपड़े बदलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो ये कपड़े 3 दिन से पहने हुए थी और वो इस काबिल नहीं थी कि इन्हें और पहना जाए, इसलिए इसे कपड़े मजबूरन तब्दील करने पड़े। वो कपड़े हैवी थे, पर वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थे। लाल रंग की नफीस सी लंबी फ्रॉक थी, जिसके गले और बॉर्डर पर हैवी काम हुआ था। उसने अपना आप का दावर आईने में देखा तो इसे अपनी बेबसी याद आ गई। उसने वहीं ज़मीन पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम तड़पोगे, बेबसी से रोओगे, इस तरह जिस तरह आज मैं बेबस हूँ। और मैं फिर भी तुम्हारी बेबसी का तमाशा देखूंगी। बद्दुआएं बाद में देती रहना, सारी उम्र पड़ी हुई है, अभी फौरन नीचे आओ। वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसे घुटनों में सर दिए रो रही थी। इसने सर ऊपर उठाया तो अपना हुक्म देकर जा चुका था। वो भी उठी और नीचे जल्दी कमरे से बाहर निकल कर इसे मालूम हुआ कि वहाँ बिलाशुबा बहुत वसी और खूबसूरत फार्म हाउस था। नीचे पहुंची तो शायद साहब इसी का इंतजार कर रहे थे। ज्यादा लोग तो नहीं थे, बस 7
8 लोग थे। वो बैठी तो मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। सलार मुस्तफ़ा वल्द मुस्तफ़ा सुलेमान, माहिन जुल्फ़िकार वल्द जुल्फ़िकार वसी अहमद को बाइवज़ 5 लाख रुपए सिक्का रजुल हक आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। अब वो माहिन की तरफ मुड़े। माहिन जुल्फ़िकार वल्द जुल्फ़िकार वसी अहमद बाइवज़ 5 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल हक आपको सलार मुस्तफ़ा वल्द मुस्तफ़ा सुलेमान के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसने सर उठाया तो उसके सामने ही बैठा था। दिल चाह रहा था कि इनकार कर दे, लेकिन वो बेबस थी, अभी बहुत बेबस। बेटा जवाब दें, क्या आपको ये निकाह कबूल है? होश उसे तब आया जब मौलवी साहब ने दोहराया था, जी कबूल है। कहते ही उसकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने दूसरी बार पूछा। जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। ये कहकर वो रुकी नहीं, वापस कमरे की तरफ चली गई। वो कमरे में पहुंचा तो वो बेड की पुष्ट से टेक लगाए घुटनों में सर दिए रोने में मसरूफ थी। वो वहीं खड़ा थोड़ी देर उसे देखता रहा और फिर चलता हुआ उसके करीब पहुंचा। अब ये रोने धोने से क्या होगा? इन थप्पड़ का बहतान तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। इसकी आवाज़ सुनकर इसने झटके से अपना सर उठाया और इसको पास खड़े होकर वो झटके से इसको पास खड़े देखकर वो झटके से उठ खड़ी हुई थी। मना लो जश्न जितना मनाना है सलार मुस्तफ़ा, अभी तुम्हारा वक्त है। जो तुम मुझे तड़पा रहे हो, कल मेरा वक्त आएगा और मैं तुमको तड़पते देखूंगी। मेरी बद्दुआ है सलार मुस्तफ़ा, तुमको किसी लड़की से मोहब्बत होगी, शदीद मोहब्बत, और वो तुमसे नफरत करेगी, शदीद नफरत, और तुम भी तड़पोगे, बहुत तड़पोगे, ठीक इस तरह जिस तरह आज मैं तड़प रही हूँ। वो उसका गिरेबान पकड़े धाड़ी थी। तुम मुझे सलार मुस्तफ़ा को बददुआ दे रही हो, वो भी मोहब्बत की? मोहब्बत? नो नेवर, कभी नहीं। सलार मुस्तफ़ा को ना कभी किसी से मोहब्बत थी, ना है और ना होगी। ये सिर्फ तड़पाती सिसकाती है, कमज़ोर बनाती है। नफ़रत है मुझे मोहब्बत से, शदीद नफ़रत। सलार उसके बाजों को अपने हाथों के शिकंजे में दबोचे वो नफ़रत और खुद अजियती से बोला था, छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है मुझे। उसकी गिरफ्त सख्त से सख्त होती महसूस करके वो चिल्लाई थी, ये दर्द, ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं इसके मुकाबले जो तुमने सारी जिंदगी भर बर्दाश्त करनी है। सलार ने उसके बाजों पर गिरफ्त और सख्त करते हुए बोला था, मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ। वो दर्द और नफरत से चिल्लाई थी। हाँ तो करो ना, मना किसने किया है? अब तो खैर से तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा हक है पूरा पूरा। वो उसके करीब होता जो मायनी लहजे में बोला था, तुम ना जंगली इंसान हो, जंगली जानवर। वो चिल्लाई थी, जबान संभाल कर, आइंदा ऐसी जबान इस्तेमाल की ना तो जबान काट देने की सकत है मुझ में। वो उसका जबड़ा दबोचे घर आया था और अब फ्रेश होकर जल्दी बाहर आओ। वो उसका जबड़ा झटके से छोड़कर बाहर जाने लगा। और हाँ, 10 मिनट में बाहर आ जाओ। 10 मिनट मतलब 10 मिनट। वो इसको वार्न करता बाहर चला गया। अल्लाह, इसके जाने के बाद वो घुटनों के बल बैठी बिलक बिलक कर अपनी बेबसी पर रोई थी। 10 मिनट बाद वो फ्रेश होकर निकली तो वो लाउंज में सोफे पर बैठा मोबाइल पर मसरूफ था। चलो इसे देखते ही खड़ा हो गया। वो भी इसके पीछे चल दी। वो फार्म हाउस किसी वीरान जगह पर था। इन्हें वहां से निकले तकरीबन 4 से 5 घंटे बीत चुके थे। अब कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? आखिरकार तांग आकर इसने पूछ ही लिया। सलार बिना जवाब दिए गाड़ी चलाता रहा और इसकी यह हरकत माहिन का खून खौला गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अब की बार माहिन ने गला फाड़ कर कहा। अब की बार सलार ने नागवार सी नजर उस पर डाली। आवाज नीची रखो, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, इसलिए बेहतर होगा चुप करके बैठी रहो। वो दुरुस्तगी से कहता वापस ड्राइविंग में मसरूफ हो गया। कुछ देर पहले ही वो लोग शहर पहुंचे थे और वो इसे इस अपार्टमेंट में ले आया था और आते ही रूम में चला गया था। अब मसला ये था कि माहिन को लग रही थी भूख, इसलिए भूख के पेश नज़र इसको किचन में जाना पड़ा। पकाना तो इसे कुछ आता नहीं था, सो इतने सारे कैबिनेट खंगालने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ ना मिलना था तो ना मिला। सिवाय खाना पकाने के सामान के अलावा कोई नूडल्स, कोई बिस्किट्स ना थे। अब इसने फ्रिज खोला तो खुशकिस्मती से अंडे मिल गए। वो एक कैबिनेट में ब्रेड देख चुकी थी। चलो ये मसला तो ख़त्म हुआ। वो पुरजोश हुई थी, लेकिन कुछ याद आने पर एकदम बुझ गई। लेकिन अब क्या करूं? अंडों को यूं ही तो खाया जा नहीं सकता। अब क्या करूं? रिजवाना, हाँ रिजवाना, उसके घर में खाना पकाने वाली मासी रिजवाना कैसे बनाती थी ऑमलेट। दिमाग पर इतना जोर डालने के बाद इसे तब का मंजर याद आया था जब वो नाश्ता लेट होने पर किचन में पहुंची थी और रिजवाना ऑमलेट बना रही थी। इस वक्त वो फ्राइंग पैन में
तेल डाल रही थी, फ्राइंग पैन कहाँ है। अब वो पूरे किचन में फ्राइंग पैन ढूंढती फिर रही थी। फ्राइंग पैन तो मिला नहीं, लेकिन ये पतीली मिल गई। चलो अभी इसी से काम चला लेती हूँ। वो फुल साइज की देगची को पतीली बोल रही थी। जैसे तैसे इसने देगची को उठाकर चूल्हे पर फिट किया और चूल्हा भी जैसे तैसे जला ही लिया। अब तेल कहाँ ढूंढूं, इस कैबिनेट में मैं देखती हूँ, मिल गया। अब वो तेल देगची में डालने लगी। मुश्किल तो हो रही थी। ज़ाहिर है जब 5 किलो के तेल की बोतल उठाए अपना मुँह तक आती देगची में डालेगी तो मुश्किल तो होगी ना। मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी होगा। 2.5 लीटर तेल देगची में डालने के बाद इसे कुछ इत्मीनान हुआ। अब अंडों को कैसे बनाते हैं। एक काम करती हूँ कि पहले अंडे मिक्स करती हूँ, फिर कुछ मसाले डाल लेती हूँ। अब मसला अंडा तोड़ने का था। पहला अंडा इसने स्लैब पर बॉल की तरह हिट करके मारा, जिसके नतीजे में अंडे की बदबूदार छींटों ने बड़े ही भयानक अंदाज में इसके मुंह पर सलामी पेश की। तू या अल्लाह, अब क्या करूं। वो स्लैब के किनारे से वो स्लैब के किनारे से बहकर अपने कदम बोसी करते अमेज़े को देख रही थी। चल कोई बात नहीं माही, दोबारा कोशिश करो, शाबाश। खुद को हौसला देते हुए दूसरा अंडा उठाया, लेकिन अब की बार ज़रा आहिस्ता से हिट किया और वो भी बाउल में। तो अंडा टूट गया और तबाही भी ज़्यादा नहीं हुई। याहू! इसने बेसाख्ता जंप लगाई और अगले ही पल नीचे गिरे तेल और अमेज़े के नतीजे में नीचे गिरी तड़प रही थी। अभी वो अपने पैर का दर्द बर्दाश्त करते खड़ी हुई थी कि उसका हाथ स्लैब पर रखे उसकी मुशक्कत से तोड़े हुए अंडों के मिक्सचर से टकराया और फिर क्या था, बाउल उलटकर इस पर आ पड़ा और वो एक बार फिर अंडों से नहाई हुई ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। इस धमाचौकड़ी की वजह से चूल्हे पर रखी पतीली सूरी देचकी और इसमें मौजूद 2.5 लीटर तेल का ख़्याल दिमाग से निकल चुका था, जिसके जलने के नतीजे में पूरा किचन धुआं-धुआं हो रहा था। बेख्तियार इसकी आंखें भीगने लगी थी। वो घुटनों में सर्दियाँ बिलक-बिलक कर रो थी। अभी वो रोने में ही मसरूफ़ थी कि दरवाज़े की बेल बजी। इसने चौंक कर सर उठाया। सलार मुसलसल डोर बेल बजने पर उठकर बाहर गया। वो किचन के पास से गुजर रहा था कि कुछ जलने की बदबू महसूस करके किचन में गया। सलार को किचन में दाखिल होते देखकर उसका दिल किया कि ज़मीन फटे वो इसमें दफन हो जाए। वो सर झुकाए आंसू पीती, निचला होंठ काटती शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में थी। कुछ देर सलार इसे और किचन की हालत को देखता रहा, फिर मुस्कुराहट दबाए रुख मोड़कर मुसलसल होती बेल की वजह से दरवाज़ा खोलने चला गया। अस्सलाम वालेकुम साहब। वो दरवाज़ा खोला तो बड़ी उम्र की एक औरत खड़ी थी। आप कौन? सलार ने इनके सलाम को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। साहब वो हमको ना हमाद साहब ने भेजा सफाई वगैरह के लिए। अच्छा, हाँ मैंने ही कहा था इसको, आ जाएं आप। वो इसे रास्ता देता अंदर की तरफ बढ़ा। अब पहले किचन से शुरू कर लें और पहले कुछ खाने को भी बना दीजिएगा। वो इनको किचन का रास्ता बताकर अपने कमरे में चले गया। हाय अल्लाह बीबी जी, ये क्या। बुआ दोनों हाथ सर पर मारती माहीन की तरफ बढ़ी थी और इसको उठने में मदद दी थी। बेटा तुम यहाँ चेयर पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। माहीन आंसू साफ कर रही थी कि इतनी देर में बुआ पानी ले आई। लो बेटा पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए खाने को झटपट कुछ बनाती हूँ। बुआ किचन की हालत देखकर इतना तो समझ ही गई थी कि कुछ बनाने की कोशिश की गई है। माहीन बुआ को खाना बनाने में मसरूफ़ देखकर फ्रेश होने चली गई। ये फ्लैट 2 कमरों, किचन, लाउंज पर मुश्तमिल था। माहीन को कपड़े बदलने की अब अशद ज़रूरत थी, लेकिन मसला ये था कि इसके पास कपड़े नहीं थे। कुछ ख्याल आने पर वो इसे कमरे में गई, यहाँ सलार सो रहा था और दबे कदमों से अलमारी तक पहुंची और अपना कारनामा अंजाम देकर वो दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में नहा धोकर फ्रेश खड़ी थी, पर उसका हुलिया थोड़ा नहीं काफ़ी मुज़हका खेज़ लग रहा था। वो सलार की टी-शर्ट और ट्राउज़र पहने हुए थी, जो कि इसके घुटनों तक आ रही थी और शर्ट की आस्तीनें बहुत फ़ोल्ड करने के बावजूद इसकी कलाइयों तक आ रही थी और ट्राउज़र तो गरारे का नक्शा पेश कर रहा था। फिर भी वो मुतमईन थी। माहीन इन सब से फ़ारिग होकर बाहर आई तो बुआ किचन साफ़ करके खाना तैयार कर चुकी थी। क्या बनाया है बुआ आपने? माहीन ने टेबल पर रखा डिश का ढक्कन उठाते हुए पूछा। बेटा चिकन कढ़ाई। बर्तन धोती बुआ इसके सवाल पर जवाब देती पलटी थी और माहीन का हुलिया देखकर इनकी आंखें और मुंह पूरी की पूरी खुल गई थी और फिर बमुश्किल हंसी दबाती वापस बर्तन धोने में मसरूफ हो गई। माहीन खाना खाने में मसरूफ बुआ की हैरानगी और हंसी दबाना नहीं देख पाई थी। माहीन 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 अभी खाने से फारिग होकर पानी ही पी रही थी कि सलार चलाता हुआ किचन में दाखिल हुआ। माहीन मुस्कुराहट दबाए यूं पानी पीने में मगन रही जैसे सुना ही ना हो। इसको मगन देखकर इसका पारा हाई हो गया। तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही? मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, फौरन रूम में आओ। बुआ की मौजूदगी का ध्यान करते हुए धीमे मगर सख्त लहजे में कहकर वो चला गया। आया बड़ा हीरो। मैं भी नहीं जा रही। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सलार आया और इसका हाथ पकड़ा और इसे घसीटता हुआ कमरे में ले गया और कमरे में ले जाकर बेड पर पटका।
पटखा, तुम समझती क्या हो खुद को? तुम हो क्या आखिर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी को हाथ लगाने की? और ये क्या किया है तुमने मेरी टी शर्ट और जीन्स का? सलार गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी सारे कटे पटे कपड़े माहीन के मुंह पर मारे। इतनी जिल्लत का तो माहीन ने कभी सोचा भी नहीं था, पर इसने सोच लिया था कि इसने चुप के पर उसने सोच लिया था कि चुप रहेगी तो वो और दबाएगा। बहुत हिम्मत करके वो खड़ी हुई। यहाँ पर मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं थे तो मुझे तुम्हारी अलमारी को हाथ लगाना पड़ा, और अलमारी खोली तो तुम्हारे कपड़ों को देखकर जो ख्याल में आया वो कर डाला, और अब भी मैं यही करूंगी और तुम मुझे नहीं रोक सकते। बहती आंखों के साथ चबा चबा कर कह कर वो वहां से भाग गई थी। और यही वो पल था जब पहली बार पल भर को माहिन के बहते आंसुओं में उसका दिल डूब कर उभरा था। वो अपने दिल को घर से डुबोता घर से बाहर चला गया। माहिन ने दूसरे कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया और खूब रोई। सलार को गए हुए हफ्ता हो गया था तो वो दोबारा घर सिर्फ एक बार आया था, और वो भी बुआ को शॉप पर देखकर खड़े खड़े चला गया था और मेन गेट बाहर से लॉक करके गया था, और बुआ इसके साथ ही रह रही थी। आज वो लॉन में बैठी बहुत उदास थी। उसे मामा बाबा और जिमी बहुत याद आ रहे थे। माहिन को अब भी यकीन था कि सलार ने जिमी के बारे में सब गलत मलत बोला होगा, सिर्फ और सिर्फ इसे बदगुमान करने के लिए। माहिन बेटा क्या कर रही है? देखो बारिश का मौसम हो रहा है और मैं तुम्हारे लिए पकोड़े और चाय बनाकर लाई हूँ। बुआ ऐसे लॉन में बैठे देखकर इधर ही चली आई थी। इन दोनों में बुआ इसे इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। बेटा क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? बुआ ने इसे गुमसुम देखकर बोला। बुआ मुझे अपने बाबा बहुत याद आ रहे हैं, अपनी मामा याद आ रही हैं, जिमी याद आ रहा है। आपको पता है अल्लाह मियाँ मुझसे प्यार नहीं करते। इन्होंने मेरे बाबा को मुझसे ले लिया था, फिर मामा को भी बुला लिया, और जिमी से सलार ने मुझे दूर कर दिया। माहिन बहते आंसुओं के साथ बोलते हुए वो बिल्कुल बच्ची लग रही थी। शिश पगली चुप करो, ऐसे नहीं बोलते, अल्लाह को बुरी लग जाती है। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना प्यारा बनाया है, तुम कहती हो कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरे सामने माशाल्लाह से सेहतमंद बैठी हो और तुम कहती हो कि अल्लाह तुमसे प्यार नहीं करता। ये नाशुक्री है बेटा, और नाशुक्री अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। वो बड़े प्यार से माहिन को समझा रही थी। मुझे देखो, मेरे शोहर और 2 बेटों को दिन दिहाड़े मेरे घर में घुसकर मेरी नज़रों के सामने बेदर्दी से सीने में खंजर घोंप कर मार दिया गया। मैं तन्हा रह गई दुनिया में। लेकिन मैंने तो कभी ये नहीं सोचा कि अल्लाह मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर वो चाहता तो मेरे हाथ पैर काट कर मुझे माज़ूर बना देता। तो मैं क्या करती? आज जो मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ ना, वो इसलिए कि वो मुझसे प्यार करता है, 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। बुआ कह रही थी, और उनकी आँखों से आँसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। माहिन के दिल को कुछ हुआ था। वो उठी और बुआ के करीब होकर बैठी और तसल्ली देने के अंदाज में अपने हाथ की पुश्त से उनका घुटना थपथपाया। बुआ ने आँसू पोंछते हुए माहिन की तरफ देखा और इसके हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुरा दी। माहिन ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि वो किसी मुलाज़िमा के करीब बैठकर बातें करेगी, पर पता नहीं क्यों इसका दिल इन्हें मुलाज़िमा नहीं मानता था। वो बहुत थोड़े वक़्त में इनसे बहुत मानूस हो गई थी। और इनकी बातें सुनकर इसके दिल ने इनके लिए बहुत दर्द महसूस किया था। तुम इतनी उदास नहीं हो बेटा, तुम अकेली नहीं हो, तुम मुझे अपनी मामा की तरह ही समझ सकती हो, और तुम फ़िक्र ना करो, मेरे अल्लाह बहुत रहम व करम करने वाला है। तुम देखना वो सलार बेटे के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। बुआ बहुत प्यार और दिल से बोली थी, पर बुआ मेरे दिल में इसके लिए रत्ती बराबर भी कोई जज़्बा नहीं है। वो कातिल है मेरी मामा का, वो कातिल है मेरी खुशियों का। मैं इससे मोहब्बत तो दूर की बात, इसके बारे में कुछ अच्छा सोचना भी नहीं चाहती। नफ़रत है मुझे उससे। क्यों आया वो मेरी ज़िंदगी में? काश ना मिलता वो मुझे कभी। काश मैं कितनी खुश थी अपनी ज़िंदगी में। वो बोल रही थी और इसके आँसू बह रहे थे इसके गालों पर। क्या सलार बेटे ने नहीं बच्चे, तुमको कोई गलतफ़हमी हुई होगी। वो ऐसा बच्चा नहीं लगता मुझे। बुआ हैरानगी और बेयकीनी के मिले-जुले तासुरात के साथ बोली थी। नहीं बुआ, आप नहीं जानती इसको, इसने मुझे अगवा किया था और इसी वजह से मामा को हार्ट अटैक हुआ था और फिर इनका इंतकाल हो गया था। नहीं बेटा, ये गलत बात है। सलार ने इनको कत्ल नहीं किया, इनकी मौत का वो वक़्त मुकर्रर था, बस तुम्हारी गुमशुदगी बहाना बन गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए के कहकर उन्होंने ठंडी सांस भरी थी, फिर दोबारा बोली, और जहाँ तक बात नफ़रत की है ना, तो बेटा ये जो निकाह होता है ना, वो सिर्फ़ कागज़ात पर दस्तखत कर देने या फिर 3 मरतबा कबूल है, कबूल है, कबूल है तक महदूद नहीं होता। इस रिश्ते में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक बहुत ही काबिल एहतराम और काबिल मोहब्बत रिश्ता होता है।
اللہ इस रिश्ते में मोहब्बत और एहतराम खुद ही डाल देता है। तुम भी सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे दिल में भी इसकी मोहब्बत डाल देगा। माहीन हनूज सर झुकाए बैठी थी। अब आंसू अब भी इसके गालों पर बह रहे थे। बुआ ने उसकी तरफ देखा। माही बच्चे इधर आओ मेरे पास। उन्होंने अपनी बाहें फैलाए इसे अपने पास बुलाया। माहीन फौरन आगे बढ़कर इनके गले लग गई और हिचकियां से रोने लगी। कभी कभार ना ज़िंदगी में हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ती है जिनकी बातें बहुत पुरअसर होती हैं, जिनके लफ्ज़ हमें अंधेरे में रोशनी की किरण दिखा देते हैं, जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब बुरा ही बुरा नहीं, कुछ अच्छा भी है जिससे हम मुँह नहीं फेर सकते, जिससे हम मुँह फेर रहे हैं। और ऐसे लोग ना किस्मत से मिलते हैं और ये वो लोग नहीं होते जिन्हें हम बॉयफ्रेंड कहते हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं, वो तो सिर्फ़ धोखा होता है, फ़रेब होता है जो हम खुद को दे रहे होते हैं, अपने से जुड़े रिश्तों को दे रहे होते हैं। बेटा मेरी एक बात मानोगी? बुआ से गले लगाए बड़ी आस से बोली थी। जी कहें, अपना दिल साफ कर लो सलार की तरफ से। जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसे यूं नफरतों में ज़ाया मत करो माही। माहीन ने सर्द आह भरी। बोलो बुआ, अगर मैं इसे माफ़ भी कर दूं, अपना दिल भी इसकी तरफ से साफ कर लूं तो भी कुछ नहीं होगा। वो मुझे इत्तफाकन लाया है, इसको मुझ में ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं। माहीन आंसू साफ करती धीमे से बोली। फिर वही बात, दिलों में मोहब्बत डालने वाली अल्लाह की ज़ात है। तुम बस अपनी सी कोशिश करो, तुम्हारी तवज्जो, मोहब्बत और खलूस उसका दिल तुम्हारी तरफ मोड़ देगी इंशाल्लाह। इन पर यकीन लहजा ऐसे बहुत कुछ इनका यकीनन लहजा इसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। वक्त का काम है गुजरना, अच्छा या बुरा गुजर ही जाता है। सलार को गए हुए 3 हफ्ते और गुजर चुके थे और इन गुजरे दिनों में माहीन ने जिंदगी के बहुत से ढंग सीखे थे और इस सब में बुआ का बहुत बड़ा हाथ था। वो अब नमाजें पढ़ना भी शुरू हो कर चुकी थी। माहीन के लिए ये सब बहुत मुश्किल था क्योंकि इसने कुरान पाक भी आधा पढ़ा हुआ था, वो भी बचपन में, जो कि अब वो भूल चुकी थी। इन गुजरे दिनों में इसने अपने दिल को भी सलार के लिए बदल लिया था। माही नमाज पढ़ कर किचन में आई तो बुआ रात के खाने की तैयारी कर रही थी। बुआ क्या बना रही हैं आप? बेटे अभी तो कुछ बनाना शुरू नहीं किया, तुम बनाओ बताओ क्या बनाऊं? बुआ एक काम करें, पास्ता बना लें। चलो ठीक है, तुम बैठो मैं बना देती हूँ। बुआ माहीन को बैठने का कहकर कैबिनेट से पास्ता निकालने लगी, फिर फ्रिज से सब्जी निकाल कर काटने लगी। लाए बुआ मैं सब्जी काट दूँ। अरे नहीं बेटा, बैठो आराम से, मैं कर लूँगी। कहकर वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। वो भी चुप हो गई। थोड़ी ही देर में वो खाने से फारिग होकर इशा की नमाज़ पढ़ने कमरे में जा चुकी थी। 1 महीने बाद वो घर आया था। चुपचाप दरवाज़ा खोलकर अपने रूम में दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही इसे झटका लगा। कोई लड़की सी नमाज़ पढ़ रही थी। मिनट के 1000वें सेकंड में इसे वो याद आई थी। माहीन जिसे वो 1 महीने पहले यहाँ बंद करके गया था, लेकिन वो नमाज़ पर वो इस कमरे में क्यों थी? बहुत से ख्यालात इसके दिमाग में आए थे। माहीन ने सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाया कि इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मुंह फेर कर उस शख्स पर नजर पड़ी जिसके लिए इसका दिल धड़कने लगा था। लम्हे भर को वो साकित हुई थी। वो सलार मुस्तफ़ा था जिसकी मोहब्बत अल्लाह ने माहीन जुल्फ़िकार के दिल में डालना शुरू कर दी थी। ओह क्या बात है, मिस माहीन जुल्फ़िकार नमाज पढ़ रही हैं? इंटरेस्टिंग। लेकिन पता है क्या? वो चंद कदम चलता इसके पास आया। तुम्हारे ये ड्रामे मुझ पर नहीं चलने वाले। मैं तुम्हारी असलियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। सलार मुस्तफ़ा तुम जैसों को अच्छी तरह जानता है। तो बराए मेहरबानी इस तरह के ड्रामों पर अपना वक्त और एनर्जी ज़ाया मत करो। धीमी आवाज़ और सख्त तासुरात से कहा और वापस जाने लगा। फिर कुछ ख्याल आने पर मुड़ा। और ये तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? दूसरे कमरे में जाओ, मुझे आराम करना है। ये कहकर वो बेड पर जाकर लेट गया। माहीन उठी, जाए नमाज तय करके शेल्फ में रखती बेड के पास खड़ी होकर सलार से मुखातिब हुई। पहली बात ये कि मिस माहीन जुल्फ़िकार नहीं, माहीन सलार। तो मेरी कितनी असलियत से वाकिफ़ हो, कितनी तो नहीं, आई डोंट केयर। और रही बात नमाज की, तो ये मेरी और मेरे अल्लाह का मामला है, तो तुम इस बारे में कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। उसका लहजा धीमा मगर सख्त था। आंखों के रास्ते आंसू बाहर निकलने को बेताब थे, जिन पर इसने बंद बांध रखे थे। और हाँ, इस कमरे में मैं अपने शौक से मौजूद नहीं हूँ। दूसरे कमरे में बुआ सोती हैं, तो यहाँ रहना मेरी मजबूरी है। कहकर वो चली गई और वो इसे सोचने लगा, क्या वाकई वो बदल गई? किचन में जाकर वो फूट फूट कर रोई थी। ये शख्स मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। स्लैब पर मुक्का बनाकर मारती वो दबा वो चिल्लाई थी, फिर फर्श पर बैठती चली गई। इसने अपने इस लम्हे अल्लाह से बहुत शिकवे किए थे। माहीन को यूं घुटनों में सर दिए रोते हुए काफ़ी वक्त बीत चुका था कि इसे खटके की आवाज़ है। माहीन ने सर ऊपर उठाया तो सामने वो था, सलार मुस्तफ़ा। फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा था। वो उठी और अंदर जाने लगी कि इसको रुक जाना पड़ा।
रो रही हो, वैसे ये आंसू ना संभाल कर रखो, आगे बहुत रोना है। वो उसे और उसकी बातों को इग्नोर करती जाने लगी कि वो फिर बोला रुको। वो रुक गई पर मुड़ी नहीं। वो चलता हुआ उसके करीब आया। कल तैयार रहना और अपना सामान पैक कर लेना, हम और यहाँ नहीं रहेंगे। अब वो चौंकी। फिर कहाँ जाएंगे हम? इसके पूछने पर वो चंद कदम चलता इसके और करीब हुआ। ना ही मैंने तुम्हें हक दिया है कि तुम कोई सवाल पूछो और ना ही मैं तुम्हारा जवाब दे हूँ। वो बोला तो उसका लहजा सच था। कहकर वो जा चुका था और वो सुन खड़ी रह गई थी। इसके जाने के बाद वो वहीं रखी चेयर पर सर पकड़कर बैठ गई। या अल्लाह, भी और कितने इम्तिहान बाकी हैं। लफ्जों में बेबसी नुमाया थी। मत पूछ यार, पता नहीं किस कुत्ते ने बाबा को बताया इसके बारे में। अब इनको अपनी रेपुटेशन की फिक्र लग गई है। अगली सुबह जब वो नहाकर निकली तो सलार बेड पर आड़ा तिरछा लेटा, लैपटॉप खोले, कानों में हैंड फ्री लगाए किसी से बात करने में मगन था। इसके दिल ने एक बीट मिस की। दिल पल भर को रुका था। आज वो इसे बहुत अलग लगा था। या शायद इसकी नज़र बदल गई थी। इसकी नज़रों में इस्तेहाक आ गया था। उसके दिल ने बेख्तियार ही अल्लाह से इसे मोहब्बत मांगी थी, चाहत मांगी थी, उसका दिल मांगा था। उसके दिल को चुरा लेने की चाह की थी। वो बात करने में मगन था। वो चुपचाप दुपट्टा उठाती बाहर आ गई। अब निकाह कर ही लिया है तो घर भी लाओ। दिमाग खराब कर दिया है। अब मैंने इससे इनकी बहू बनाने के लिए थोड़ी निकाह किया था। वो निकाह सिर्फ बदला था और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बाहर सोफे पर बैठे वो सब सुन रही थी। इतनी हद तक, इतनी बेइज्जती। ये शख्स ये सोचता है मेरे बारे में और मैं क्या सोचने लगी हूँ इसके बारे में। आंसू बेख्तियार ही बहने लगे थे गालों पर। अंदर से आवाज़ अब भी आ रही थी, नहीं यार, बाबा का प्रेशर बढ़ रहा है, कल लेकर जा रहा हूँ इसे। मामा तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन खैर इनका इतना मसला नहीं, वो तो मान जाएंगी। लेकिन डैड का क्या करूँ? खैर देखो अब क्या होता है। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया था कि वो दोबारा बोला, नहीं यार, पहले मैंने भी यही सोचा था कि जान छड़ाऊं इस मुसीबत से। पर उसका जुमला अधूरा रह गया था क्योंकि माहिन उसका मोबाइल उससे छीन कर दूर फेंक चुकी थी। सलार ने एक नज़र अपने मोबाइल को देखा जो दीवार से टकरा कर गिरने से अल्लाह को प्यारा हो चुका था, और दूसरी नज़र इसको जो सामने खूनख्वार तेवर लिए खड़ी थी। मुसीबत किसे कहा तुमने? और तुम खुद को क्या समझते हो? मैं मरी नहीं जा रही तुम्हारे साथ रहने को, और ना ही मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ कि तुम जाने दो तो भी न जाने पाऊँ। आखिरी जुमला कहते वो ज़बान लड़खड़ाई थी। दिल का चोर ज़बान पर आया था। आंसू मुसलसल बह रहे थे पर सामने बैठे दुश्मनाने जहाँ पर कोई असर ही नहीं था। देखो, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, बहुत थका हुआ हूँ, सोने दो, तैयार हो जाना, शाम तक निकलेंगे। बिना इसकी तरफ देखे कहता सोने के लिए लेटने लगा। इंतहा थी बेनियाजी की। सुनो। वो पलट कर जाने लगी थी। किसने आवाज़ दी? वो पलटी और दोनों की नज़रें मिली। पल भर को कुछ थमा था। हाँ, वो सालार का दिल था जो थमा था। इन भीगी भीगी आंखों में वो डूबा था। इन शिकवा करती निगाहों में कुछ तो ऐसा था जो इसको असीर कर गया था। लम्हे भर का हादसा था। ट्रांस टूटा और इसका होश आया था। अगले ही पल उसने नज़रें फेर ली। माहिन को भी होश आया। वो गिड़बड़ाई थी। जाते हुए दरवाज़ा बंद करते जाना। बोलना कुछ था, बोल कुछ गया। वो चुपचाप दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई और पीछे वो इस दरवाजे को देखता रह गया। वो किचन में पहुंची तो बुआ नाश्ता बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम, माहिन ने सलाम किया और डाइनिंग टेबल पर चेयर पकड़कर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ, बैठो बेटा। बुआ बुआ ने फ्राइड अंडा निकालते हुए कहा। इसने कुछ जवाब नहीं दिया। बुआ ने टेबल पर नाश्ता लगाया और चेयर निकाल कर बैठ गई। क्या हुआ है, इतनी उदास क्यों हो? बुआ ने इसकी तरफ देखकर बोला, सलार आया हुआ है। माहिन ने नीचे देखे देखे बताया। बुआ ने सर दाबरी। पता है, उसकी आवाज़ आई थी मुझे। माहिन ने झटके से सर उठाया, यानी वो सब कुछ सुन चुकी थी। आंसू एक बार फिर आंखों के रास्ते बाहर आए थे। बेटा परेशान ना हो, अल्लाह है ना। नहीं बुआ, मैं सब्र कर चुकी हूँ। मोहब्बत तो वो मुझसे कर नहीं सकता। तंग आकर किसी न किसी दिन मुझे छोड़ देगा और फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगी। बस मैं इसी खुशी में हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वो कहकर आंसू पोंछने लगी। बुआ ने तासुब से उसे देखा। ये तुम जैसे सब्र कर रही हो ना, ये सब्र नहीं होता। आंसू बहाना, मातम करना, शिकवे करना, हार मान जाना, ये सब्र नहीं होता। ये मायूसी होती है और मायूसी कुफर है। सब्र अल्लाह के दिए गे पर राज़ी हो जाना और इस पर दिल से मुतमईन हो जाना होता है। बुआ इसे देखते हुए कह रही थी। बुआ ने इसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, सब्र करना आसान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। वो कह रही थी और वो सुन रही थी। शाम के 5 बज रहे थे। वो जाने के लिए तैयार खड़ी थी। बुआ भी अपने बैग के साथ आई। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम दोनों को शाहादोबाद रखे, तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दे। आमीन। बुआ माहिन को गले लगाए धीमी आवाज में दुआएं दे रही थी। वो चौंकी।
पीछे हुई। एक सेकंड, आप भी तो हमारे साथ जा रही हैं ना? तो फिर माहिर ने एक नज़र बुआ को देखा और फिर पीछे मुड़कर सलार को देखा जो सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था। बुआ जा रही है ना हमारे साथ? इसने सलार को देखते हुए एक बार फिर पूछा था। नहीं, बुआ हम आपके यहाँ जाएंगी। मोबाइल में मसरूफ वो कहता उठ खड़ा हुआ और बाहर निकलने लगी। लेकिन क्यों? बुआ हमारे साथ भी तो जा सकती है ना? नहीं, नहीं जा सकती, वहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है। वो बिना इसकी तरफ देखे कहकर चला गया। बेटा कोई बात नहीं, तुम मिलने आ जाया करना, और वैसे भी हमाद साहब सलार साहब के दोस्त हैं। सलार के जाने के बाद बुआ माहीन को दिलासा देते हुए बोली थी। बुआ देखा आपने कैसे मुंह मोड़कर चला गया। कभी कभार तो मेरा दिल करता है किसे उठाकर उल्टा पटक दूं। माहिन दांत पीसते हुए बोली। बुरी बात, ऐसे नहीं कहते। अब चलो जल्दी से, साहब इंतजार कर रहे होंगे, कहकर वो इसे लिए बाहर की तरफ चल दी। बुआ को हमाद की तरफ छोड़कर अब वो लोग मुस्तफा मेंशन जा रहे थे। अब क्या होगा? क्या अब इसे सलार के घर वालों की नफरत भी सहनी पड़ेगी? माहिन इन्हीं सोचों में थी कि गाड़ी मुस्तफा मेंशन के आगे रुकी। चलो ये कहकर सलार उतरा और गाड़ी की चाबी गार्ड को देकर अंदर की तरफ बढ़ गया। माहिन भी उतरकर अंदर की तरफ बढ़ गई। मुस्तफा मेंशन बंगला नहीं, महल था। मतलब कि वो अभी लॉन में खड़ी थी, लेकिन वो लॉन नहीं था, किसी बादशाह के महल का बागीचा लग रहा था। शाम का मंजर इसे और हसीन बना रहा था, इतना हसीन के बयान से बाहर। वो हिम्मत करती अंदर की तरफ बढ़ी तो दरवाज़ा बंद था। काफ़ी दफ़ा नॉक करने के बाद इसने हिम्मत करके दरवाजे पर जोर डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो अंदर चली गई। अभी वो आगे बढ़ ही रही थी कि कोई खातून इसकी तरफ चलती हुई है। आओ आओ बेटा, मैं तुम्हें ही लेने आ रही थी। पास आते इसे गले लगाया और इसलिए अंदर अंदर की तरफ बढ़ गई। मुस्तफा मेंशन बाहर से जितना शानदार था, अंदर से इससे भी दुगना था। वो इसीलिए लाउंज में आ गई थी। वहाँ बहुत से लोग जमा थे। माहिन के हम उम्र लड़के लड़के और चंद खवातीनों हजरात थे। इन्होंने इसे सोफे पर बिठाया और इसके बराबर बैठ गई। कैसी हो? मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे बारे में कुछ, लेकिन जैसे ही पता चला मैं सलार के पीछे पड़ गई कि तुम्हें फौरन लेकर आए। वो बोलती ही चली जा रही थी। वो देखने में बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी की थी। इतने धीमे और प्यार से बोल रही थी कि माहिन को बेख्तियार अपनी मम्मा याद आई। कुछ याद आने पर वो दोबारा बोली। अरे मैंने तुम्हें सबका तारुफ तो कराया ही नहीं। मैं सलार की मामा, ये सलार के बाबा, ये सलार की फूफा, ये फूफा, ये चाचू और ये चाची हैं। वो बारी बारी सबका तारुफ कराती गई और सबसे सलाम और दुआ लेती गई। सब बहुत अच्छे से मिले सलार की चाची के। अब रही ये बच्चा पार्टी, तो ये तुम्हें अपना तारुफ बाद में खुद ही करा देगी। बिल्कुल मामी, हम अपना तारुफ खुद ही अच्छे से करा देंगे। बच्चा पार्टी में से एक लड़की चहक कर बोली। अभी तुम थकी हुई होगी, तुम जाओ आराम करो ऊपर अपने रूम में जाओ। शाबाश, सलार भी वहीं है। वो खड़ी हुई पर रास्ता तो इसे पता ही नहीं था। इससे पहले वो कुछ कहती कि बच्चा पार्टी में से वही प्यारी सी लड़की खड़ी हुई। भाभी, मामी मैं भाभी को रूम तक छोड़ कर आती हूँ, इसने कहा और माहिन का हाथ पकड़ा और इसे लिए ऊपर जाने लगी। मगर पीछे दो हाथ निगाहें मुसलसल इस पर लगी हुई थी। भाभी मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? माहिन माहिन ने हल्की स्माइल के साथ धीमे से कहा। नाइस नेम। बाय द वे मेरा नाम वजीहा है, लेकिन सब कहते वजी हैं। आखिरी जुमला मुंह बनाकर बोला गया था। वेज, ये क्या नाम हुआ? माहिन को बेख्तियार हंसी आई थी। रहने दें और ज्यादा मत हंसे। यहाँ आपको सबके ही ऐसे निकनेम सुनने को मिलेंगे, और ये सब आपके शोहर नामदार का किया धरा है। बातों ही बातों में वो लोग कमरे के दरवाजे तक पहुंच गए थे। अब आप जाएं, आराम करें, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बिला झिझक कह सकती हैं। मुस्कुराकर कहती वो चली गई। माहिन दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो कमरे में नीम अंधेरा था। सरार बेड की एक तरफ सो रहा था। वो भी फ्रेश होकर सोने लगी, लेकिन नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी सोच इस घर और घर के लोगों में ही उलझी हुई थी। कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में जा चुकी थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? महविश चिल्लाई। बेटा सब्र करो, मुझे खुद भी नहीं पता था कुछ इस बारे में। मैं भाभी से बात करती हूँ। वो सलार की चाची थी। मामा मुझे समझ नहीं आता कि ताई अम्मा ऐसे कैसे कर सकती हैं। इस घर में सब जानते हैं कि सलार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ताई अब्बू ने खुद बात की थी ना डैड से, तो फिर वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं इस लड़की को? इसने वॉस पर हाथ मारा था जो नीचे गिरकर चकनाचूर हुआ था। इस लड़की को सलार की जिंदगी से जाना होगा, क्योंकि इसकी सलार की जिंदगी में कोई जगह नहीं। सलार की जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ महविश का हक है। उसका लहजा उसकी माँ को भी डरा गया था। दस्तक की आवाज पर माहिन की आंख खुली। वो उठी, अपने कपड़े तय करती दरवाजे तक गई और दरवाजा खोला। बीबी जी, बड़ी बेगम साहबा ने आपको और छोटे साहब को खाने पर बुलाया है, मुलाजमा ने इतला दी।
اوکے ہم آ رہے ہیں۔ ماہین ملازمتیں کہہ کر دروازہ بند کر کے مڑی۔ جب وہ اس کمرے میں آئی تھی تو وہ تھکن اور نیند کے بعد کمرے کا جائزہ نہیں لے پائی تھی، تو وہ اب لے رہی تھی۔ جتنا عالی شان جو بنگلہ تھا نا، اس سے کہیں زیادہ شاندار یہ کمرہ تھا۔ اس کمرے کے انچ انچ سے سالار کا شاہانہ پن جھلکتا تھا۔ کمرے سے ہوتے ہوئے اس کی نظر سوئے ہوئے سالار پر پڑی۔ اس کا دل ایک دم مچلا۔ یہ شخص مجھ سے محبت کیوں نہیں کر لیتا؟ کیوں مجھ سے اپنی نفرت ختم نہیں کر لیتا؟ وہ ماہین ذوالفقار تھی، مغرور تھی، نخریلی تھی، انا پسند، اور آج وہ اس شخص کے لیے مر رہی تھی جو اسے نظر بھر کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ماہین ذوالفقار کی انا، خود پسندی، غرور سب ہار رہا تھا اس کے دل کے آگے۔ وہ کمزور پڑ رہی تھی، محبت اسے کمزور بنا رہی تھی۔ اتنی حسرت سے مت دیکھو، سالار مصطفیٰ کبھی تمہارا ہونے والا نہیں۔ سالار کی آواز اس واپس حواسوں میں لے آئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی محو تھی کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب کا وہ جا چکا ہے۔ سنو، کہیں تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی ہے؟ اس کا جملہ ماہین کو بخلا دینے کے لیے کافی تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں بھلا کیوں محبت کرنے لگی تم سے؟ اور وہ میڈ آئی تھی کھانے پر بلانے، نیچے جانا ہے، یہ کہہ کر وہ الماری سے کپڑے نکال کر نہانے چلی گئی۔ وہ نہا کر نکلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا، نیچے جا چکا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی۔ ماہین نے پیلا ٹخنوں تک آتا فراک پہنا ہوا تھا، اسی کے نیچے اسی کا ہم رنگ چوڑی دار پاجامہ اور ہم رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلائے وہ کوئی کھلتا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ یہ ڈریس سالار کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے ہی تھا۔ بال برش کر کے اس نے پیچھے کی طرف کھلے چھوڑ دیے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر سیٹ ہوئے میک اپ کے سامان میں سے جو اس کے آنے سے پہلے ہی شاید سیٹ کروا دیا گیا تھا، اس میں سے اس نے لال رنگ کی شیڈ کی لپسٹک اٹھا کر ہونٹوں پر لگائی، لیکن وہ بہت زیادہ تیز لگ رہی تھی۔ سامنے پڑے ٹیشو باکس میں سے اس نے ٹیشو پیپر اٹھایا اور لپسٹک صاف کی تو ہونٹوں پر لپسٹک ہلکے سے مٹے مٹے نشان رہ گئے تھے۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ پر پھر اس نے لائنر اٹھا کر باریک سا لائنر لگا اور خود کو تیار کھڑا شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ پرفیکٹ، خود سے کہتی، دوپٹہ صحیح کہتی۔ نیچے پہنچی تو سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اسی کے انتظار میں تھے۔ سالار بھی وہیں بیٹھا تھا، وہ بھی وہیں اسی کے برابر کرسی گھسیٹتے بیٹھ گئی تو سب نے کھانا کھانا سٹارٹ کر دیا۔ ماہین کو خود پر مسلسل کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں، لیکن جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سبھی کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ وہ الجھ سی گئی۔ اس کی مسلسل نظریں ماہین پر جمی تھیں۔ ہاں، وہ میں بھی تھی جس کی نظریں پرتپش نگاہ کب سے اسے الجھا رہی تھی۔ سالار کھانا کھا کر جا چکا تھا کمرے میں، وہ بھی اٹھ کر جانے لگی تھی کہ بھابھی رکیں کی آواز پر اسے رک جانا پڑا۔ ماہین واپس بیٹھ گئی۔ بھابھی اگر آپ کو کوئی کام ہے تو فوراً کر کے فارغ ہو جائیں اور پھر اوپر چھت پر آ جائیں، یہ وجیہہ تھی۔ بھابھی سارے کام ختم کر کے آئیے گا، کیونکہ اس بندریا کی باتیں سننے کے بعد آپ کچھ سننے کے قابل نہیں رہیں گی۔ یہ معاذ تھا۔ جواباً وجیہہ نے ساتھ پڑا کشن اٹھا کر معاذ کو مارا۔ وہ بے اختیار ہنسی تھی۔ وجیہہ اور معاذ دونوں چونک کر اس کی طرف مڑے، پوری آنکھیں کھولے سے دیکھنے لگی۔ بھابھی آپ تو ہنستے ہوئے اور بھی پیاری لگی ہیں، وجیہہ نے آنکھوں کو گول گول کر کے کہا۔ تھینکس، ماہین نے مسکرا کر کہا۔ ماہین سالار کی مام نے کچن سے آتے ہوئے اسے آواز دی۔ جی آنٹی۔ وہ بھی اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ یہ آنٹی کیا ہوتا ہے؟ سالار کی ماما ہوں تو تمہاری بھی ہوئی، اب یہ آنٹی وانٹی نہ سنو۔ ماہین مسکرا دی۔ جی ماما، شاباش، اور چلو اب یہ کافی سالار کو دے آؤ۔ وہ اس کو کافی کا کپ تھماتی چلی گئی۔ ماہین پیچھے بیٹھی وجیہہ کو تھوڑی دیر میں چھت پر آنے کا اشارہ کر کے اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماہین اوپر پہنچی تو سالار کمرے میں نہیں تھا، لیکن کمرے میں بائیں طرف سلائڈنگ ڈور کھلا ہوا تھا۔ وہ کافی کا کپ اٹھائے اس کی طرف بڑھی۔ وہاں ٹیرس تھا اور سالار ریکنگ سے ٹیک لگائے سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ تمہاری کافی۔ وہ آگے بڑھی اور سالار کی طرف کافی بڑھاتے ہوئے بولی۔ سالار نے اس کی طرف رخ کیا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ سالار کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ کافی آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ ابھی اس کا جملہ پورا بھی نہ ہو پایا تھا کہ سالار نے اس کو ایک بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ آؤچ! مما! جھٹکے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹا اور اس کے پیروں پر گرا۔ جلن اور تکلیف کی وجہ سے بے اختیار وہ کراہی۔ اس کا بازو ابھی بھی سالار کی گرفت میں تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو میرے پیرنٹس کو، گھر والوں کو اپنے جال میں پھنسا کر مجھ سے بدلہ لے لو گی؟ یا پھر شاید یہ سب کچھ کر کے تم مجھے حاصل کرنا چاہتی ہو؟ وہ سرد لہجے میں اس پر جھکا ہوا کہہ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کھولتی ہوئی کافی سے جلا ہوا پیر اور کپ کے پاؤں میں گر کر ٹوٹنے کی وجہ سے تیز رفتار میں بہتا ہوا خون اتنی تکلیف نہیں دے رہا تھا جتنے اس کے الفاظ دے رہے تھے۔ اس کی آنکھ سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر وہ دشمن جاں اس کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اپنی کہے جا رہا تھا۔ بلکہ نہیں، اب تم جانا کیوں چاہو گی؟ اتنے عیش، اتنا آرام چھوڑ کیوں جاؤ گی؟
खुद जानता खूब जानता हूँ मैं तुम जैसियों को, जहर लगती हो तुम मुझे जहर, पहले जिद थी तुम अब मेरी मजबूरी बन गई हो, मेरा बस चले ना तो खड़े खड़े तुमको आग लगा दूँ। वो कहते थे ज़मीन पर धक्का देकर बाहर चला गया। वो कमरे में पहुंचा तो वहाँ महविश खड़ी थी। उसे देख कर गड़बड़ा गई। वो मैं महीन को बुलाने आई थी। सलार इसे इग्नोर करता गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया और पीछे महविश के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट थी। तो ये है असल कहानी। माहीन अब सलार की नफरत की आग में चिंगारी मैं भड़काऊंगी। अब सलार को मेरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। महविश मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। टेरेस पर गई तो वहां माहीन पैर पकड़े आंसू बहाने में मसरूफ थी। ओ माहीन ये क्या हुआ? शिट, ये तो बहुत खून बह रहा है। उठो रूम में चलो, मैं ताई अम्मी को बुलाकर लाती हूँ। वो तेजी से माहीन के पास आती मसनू फिक्रमंदी जाहिर करती उसे उठाने लगी। वो इसे सहारा देती कमरे में ले आई और इसे बेड पर बैठा कर ताई अम्मी को बुलाने चली गई। देखते ही देखते सब रूम में जमा हो गए थे। डॉक्टर उसे देखकर पट्टी करके जा चुका था। बेटा ध्यान रखना रखना था ना, इतनी बेहतियाती, मॉम ने खफकी से कहा। उसने सबको यही बोला था कि उसका पैर फिसल गया था। और ही सलार कहाँ है? वो दोबारा बोली थी। वो बाहर गए हैं, इसने धीमी आवाज में जवाब दिया। इस लड़के को भी समझ में नहीं आती कुछ। वो सर पर हाथ मारकर बोली, भाभी पहले तो आपको बच्चा पार्टी का तारुफ करा देती हूँ। वो वजीहा थी। ओए बच्ची तुम खुद होगी। भाभी आपको मैं बताता हूँ सबके बारे में। ये आपके हस्बैंड की फूफो की बेटी वजीहा उर्फ वेज मोटी। ये मास था जो खुलकर सबका तारुफ कराने लगा था। वजीहा ने फौरन से मास पर कुशन उठाकर फेंका था। और ये मोटा मुआज कहलाता है। वास्ता तो कुछ है नहीं हमारा इससे, पर फिर भी 24 घंटे हमारे यहाँ पाया जाता है। मोटा कहीं का। वजीहा कहाँ पीछे रहने वाली थी। हाँ तुम्हारे घर थोड़ी आता हूँ, आशिर से मिलने आशिर के घर आता हूँ। आई बड़ी बीम मंडकी। अंदाज खासा चिढ़ाने वाला था। सभी हंसे थे वजीहा की इस इज्जत अफजाई पर। हाँ तो मेरे भी मामू का घर है। और ये मेंढकी किसको बोला? मेंढक तुम खुद हो मोटे। इससे पहले कि माज जवाबी कार्रवाई करता कि आशिर बोल उठा। भाभी मैं आशिर, सलार भाई के चाचू का बेटा और महविश का बड़ा भाई। आशिर ने अपना तारुफ खासे डिसेंट अंदाज में करवाया। वो बहुत गुड लुकिंग था। गुड लुकिंग तो खैर मुआज भी था, पर इसमें शौकपन था। जबकि आशिर की शख्सियत सलार से बहुत मिलती जुलती थी। वही रोब, वही शाहानापन जो सलार की शख्सियत का खासा था। और महविश से तो आप मिल चुकी हैं, तो इनसे मिलिए, मेरी बहन साहिबा से। नाम मारिया, उम्र में तो मुझसे 1 साल बड़ी हैं, पर इनकी कम बोलने वाली आदत जहर लगती है मुझे। और वजीहा का जुमला पूरा होने से पहले ही साथ बैठी मारिया ने एक धप लगाई थी उसकी कमर में। आप ही क्या करती हैं यार? वजीहा फौरन बुझ चलाई। माहिन खुद को काफी हल्का महसूस कर रही थी इन सबके दरमियान। वह सलार और उसकी बातों को मुकम्मल तौर पर भूली हुई थी। एंड इन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी चुटकी, और मेरा मतलब है मिशाल, वो अभी इधर है नहीं, मेरी छोटी बहन है। लेकिन वजीहा ने एक बार फिर एलानिया तौर पर तारुफ कराना शुरू किया। माहिन तुम आराम करो, मैं इसे लेकर जाती हूँ। मारिया उठी और वजीहा को भी साथ ले गई। इसके पीछे माद और मिशाल भी अल्लाह हाफिज कहकर निकल गए। आशिर और महविश तो पहले ही जा चुके थे। माहिन भी सोने लेट गई। वो रात देर से घर आया और सीधे कमरे में चला गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। सामने बेड पर बेखबर सोती माहिन पर नजर पड़ी। सलार ने सिगरेट निकाली, सुलगाई और एक कश लेकर हवा में धुआं छोड़ा। चंद लम्हे वो माहिन को यूं ही तकता रहा, फिर सिगरेट साइड पर रखकर उठा और माहिन के पास जाकर खड़ा हो गया। वो प्यारी तो वैसे भी थी, लेकिन सोते हुए इसके चेहरे पर मासूमियत रक्स का रक्स था। सलार ने हाथ बढ़ाया इससे कि इसकी आंखों पर आती लट को कान के पीछे किया। वो अपने चेहरे पर किसी के हाथ की तपिश महसूस करके कसमकाई सी और करवट बदली। सलार घुटनों के बल बैठा और उसका चेहरा उसी की तरफ था। खिड़की से आते चांद की रोशनी इस अंधेरे में सीधी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। जब जब मैं तुम्हें तकलीफ देता हूँ तो क्यों मुझे खुद को तकलीफ होती है? क्यों दर्द मुझे महसूस होता है? क्यों मैं हर बार खुद को कोसता हूँ? मुझे डर है माहिन कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला ना हो जाऊँ। कहकर ठंडी आह भरी उसने। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मुझे तुमसे सिर्फ नफरत ही करनी है, कुछ कुछ भी नहीं। जब जब मुझे थप्पड़ याद आता है ना, तो मैं खुद पर इख्तियार खो बैठता हूँ। काश तुम मुझे कहीं और मिलती, किसी और तरह। वो इसके बालों में अपनी उंगलियां सरगोशियों में बोल रहा था। इसे इस तरह बैठे कितना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। फजर की अजान सुनकर इसे होश आया। आई एम सॉरी, वो उसका माथा चूमकर कहता अपनी जगह पर जाकर लेट गया। आज मुज़्तर है मेरी जान, खुदा खैर करे। दिल में है दर्द का तूफान, खुदा खैर करे। सुबह पैर में दर्द की वजह से इसकी आंख खुली।
برابر نظر پڑی تو سلار کو سوتا پایا۔ کھڑے ہونے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور اپنی طرف کے سائڈ ٹیبل پر پین کلر چیک کرنے لگی، پر ادھر نہیں تھی۔ اس نے دوسری سائڈ ٹیبل پر نظر دوڑائی تو ادھر ٹیبلٹ رکھی تھی، اور وہ تھوڑا سلار کی سائڈ پر کھسکی اور ہاتھ بڑھا کر ٹیبلٹس اٹھانے لگی، پر اس کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا ٹیبلٹ تک۔ وہ ٹھہرا اور جھکی، اور اس کے کھلے بال سلار کے چہرے کو چھونے لگے۔ اس نے ٹیبلٹس اٹھائی، اسی لمحے سلار کے پاس رکھا الارم زور سے بجا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتی، سلار نے کروٹ بدلی۔ ماہین کا توازن بگڑا اور دوسرے لمحے اس کا سر سلار کے سر سے ٹکرایا۔ اب سلار کی آنکھ کھل چکی تھی اور وہ آنکھیں کھولے خود پر گری ماہین کو دیکھ رہا تھا اور معاملہ سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ میں یہ ٹیبلٹ اٹھا رہی تھی، ماہین پیچھے ہوتے اپنی صفائی میں بولی۔ اچھا، سلار ایک لفظی جواب دے کر واش روم چلا گیا۔ ہے اسے کیا ہوا؟ ماہین الجھی اس کے رویے پر۔ وقت نکل رہا ہے ہاتھوں سے میرے، دل میں بس رہا ہے رفتہ رفتہ تو میرے، پریشان ہوں میں کہ کہیں کر نہ بیٹھوں تجھ سے محبت، دل مچل رہا ہاتھوں میں میرے۔ ازون شاہ۔ وہ حیران تھی اس کے رویے پر کہ اس نے نہ کوئی غصہ ظاہر کیا، نہ بیزاریت، نہ ہی کوئی طنز۔ وہ بھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ سلار واش روم سے نہا کر نکلا، ٹراؤزر کے اوپر بلیک ٹی شرٹ، گلے میں لپٹا تولیا، ماتھے پر آتے بال اور ان سے ٹپکتی بوندیں۔ وہ چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل تک گیا، بال سیٹ کیے، تولیا بیڈ پر پھینکا اور خود پر پرفیوم کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اللہ اللہ، شخص کو مجھ سے محبت کرا دیں۔ اس نے اللہ سے سلار کی محبت مانگی تھی، اور اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ اس نے اپنے محرم کی محبت مانگی تھی اللہ سے، اور اس کی جس کو اللہ نے اس کا نصیب بنایا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی۔ اٹھ گئی تم بیٹا؟ میں ابھی تمہیں ہی یاد کر رہی تھی۔ آؤ، کیا کھاؤ گی تم؟ میں وہی بنوا دیتی ہوں تمہارے لیے۔ اس کو نیچے آتا دیکھ کر ماما بولی تھی، کچھ بھی بنوا دے موم۔ چلو اچھا، میں تمہارے لیے بھی آملیٹ اور پراٹھا بنوا دیتی ہوں، تم جاؤ سب کے ساتھ بیٹھو، میں لگواتی ہوں ناشتہ۔ نہیں موم، کچھ ہیلپ ہے تو میں کروا دیتی ہوں، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، ہیلپ کہتی، بس نسیمہ ابھی ناشتہ لگا دیتی ہے، تم جاؤ شاباش، بچوں کے ساتھ بیٹھو، پوچھ بھی رہے تھے سب تمہارا، جاؤ شاباش۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ لاؤنج میں آ گئی، وہاں تھا بچہ پارٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ وجیہہ فوراً کھڑی ہوئی۔ بھابھی آئیں، بیٹھیں، میں آپ کے دھماکے دار خبر سناتی ہوں، بیٹھیں بیٹھیں۔ وجیہہ ماہین کو صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر صوفے کے پاس کشن لے کر نیچے بیٹھ گئی۔ اچھا، ایسی کیا خبر ہے؟ ماہین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اصل میں ہماری بنو رانی کی دوائی ہونے والی ہے۔ وہ ماری کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے آنکھ دبا کر بولی۔ اوئے، کس کی دوائی ہو رہی ہے؟ معاذ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ودائی؟ اچھا، ودائی نہیں ہو رہی ہے تو پھر نازل ہوگے، اور یقیناً عزت مآب ناشتہ بھی ہمارے ہاں نوش فرمائیں گے۔ بھوک کا تپا دینے والا انداز تھا وجیہہ کا، اور اس کی بات پر ساتھ بیٹھی ماریا نے اس کی کمر پر دھپ نصیب کی تھی۔ آپ ہی کیا کرتی ہیں یار؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ اور تم کیا کرتی ہو؟ جب دیکھو پٹر پٹر، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ ماریا نے صحیح طریقے سے وجیہہ کو جھاڑ پلائی تھی۔ رہنے دو ماریا، ویسے بھی عزت مآب کون سا ان کے گھر آتے ہیں ناشتہ کرنے، جو ان کی فکر لگی ہوئی ہے راشن کی، وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا تک کر کے جواب دیا تھا۔ تم تو چپ ہی کرو، اور آپ یہ آپ کے نا شرمانے کے دن ہیں، یوں ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں۔ کیوں بھابھی؟ وجیہہ نے ماہین کو بھی گفتگو میں شامل کیا تھا۔ وجیہہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم کیا کہہ رہی ہو اور کیا بتانا چاہ رہی ہو؟ ماہین نے الجھ کر کہا۔ معاذ ماہین کے برابر والے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بھابھی، فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں موجود کسی بھی شخص کو ان محترمہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ معاذ کہتے ہوئے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکرایا تھا۔ معاذ کے بچے، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وجیہہ کھڑے ہو کر معاذ کے بالوں پر حملہ آور ہوئی تھی اپنے پنجوں سے۔ ارے، ماہین کے منہ سے نکلا۔ جنگلی بلی، بال چھوڑو۔ معاذ کہا، میں تو نہیں چھوڑوں گی، پہلے سوری بولو۔ معاذ کے بالوں کو جھٹکا دیتی وہ چلائی، اور ادھر ماہین اور ماریا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ نہیں بولوں گا، سوری۔ چھوڑو موٹی۔ ارے سلار بھائی، آپ دیکھیں اسے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ بولتا، وجیہہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی سب کا زوردار کہکا گونجا تھا، کیونکہ وہاں سلار کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور وہ بے وقوف بنا گئی تھی۔ ماریا نے وجیہہ کے پیچھے ہوتے ہی جلدی سے اسے کھینچ کر ساتھ بٹھایا تھا۔ تمہیں تو اب سلار بھائی دیکھیں گے، معاذ نے دھمکی دی۔ آیا بڑا سلار بھائی دیکھیں گے؟ اس نے منہ چڑھایا۔ ماریا، آپی، عاشر بھیا کہاں ہیں؟ ان کو چھوٹی ماما بلا رہی ہیں۔ مشال نے آ کر عاشر کے متعلق پوچھا۔ وہ اس سے پہلے کہ ماریا کچھ بولتی کہ وجیہہ بول اٹھی۔
ओए होए ये क्या कर रही हो? आप ही थे, आप ही के इनके बारे में पूछ रही हो, गलत बात है। आप ही को शर्म आएगी। क्यों? आप ही लफ्जों को तोड़ तोड़ कर आंखें घुमाकर चेहरे पर सारे जहान की मासूमियत तारी करके इरशाद फरमाया गया। हाय मतलब के माज ने बात अधूरी छोड़ी। जी वही मतलब, जिहा ने आंखें घुमाते जवाब दिया। ओ माज ने मुंह गोल करके ओ को खासा लंबा खींचा था। मुझे भी बता दे कोई कि आखिर बात क्या है? माहिन ने बेचारगी से पूछा। भई देखें सिंपल सी बात है कि हमारी बन्नो रानी दुल्हनिया बनने वाली हैं आशिर भैया की। वजीहा ने ड्रामाई अंदाज में माहिन को आगाह किया। वाह कंग्रेचुलेशन। माहिन उठकर मारिया को गले लगाते हुए बोली। एन इसी वक्त सलार लॉन्ज में दाखिल हुआ। भाई चलें अब आप आ गए हैं तो हम आपको भी एक धमाकेदार खबर सुनाते हैं। सलार को अंदर दाखिल होते देख वजीहा बोली। सलार के अंदर दाखिल होते हुए पहली नज़र इससे गले मिलते हुए माहिन पर पड़ी। ऐन इस वक्त वजीहा की आवाज़ सुनकर माहिन की नज़र उठी और सलार की नज़रों से टकराई थी। कौन सी धमाकेदार खबर? वो बोलते हुए सोफे पर बैठने ही लगा था कि लॉन्च में दाखिल होती मुलाजमा ने इत्तला दी। बड़ी बेगम साहबा सबको नाश्ते के लिए बुला रही हैं। मॉम बुला रहे हैं पहले नाश्ता कर लो सब। सलार की बात सुनकर सबने ड्राइंग रूम का रुख किया। सब नाश्ता कर रहे थे कि मुस्तफ़ा साहब सलार के बाबा ने ऐलान किया इस हफ्ते इंशाल्लाह मारिया और आशर का निकाह है। इस घर के बड़ों के इंतकाल के बाद मुस्तफ़ा साहब ही इस घर के बड़ा होने की हैसियत से तमाम छोटे बड़े फैसले लेते थे। पर मामू हम इतनी जल्दी सब तैयारियां कैसे करेंगे? वजीहा ने मुंह बनाकर कहा। ऐसे इन्होंने बिना उन्होंने अपना डेबिट कार्ड आगे करते हुए कहा। वजीहा ने फौरन छीना। अब की जा सकती है शॉपिंग मगर शर्त यह है कि सलार भाई आज ही हम सबको शॉपिंग पर लेकर जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है और हमाद और मेरा कुछ प्रोग्राम भी है तो मैं नहीं ले जा सकता। सलार ने बाकायदा हाथ उठाकर मना किया। भाई सोच ले, वजीहा ने वार्न किया। तो नो 9 मिनट नो, इसने कतियत से कहा। इसमें कौन सी बड़ी बात है अंकल, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ले जाऊं इन लोगों को। मुआज ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। हाँ तुम ले जाओ, मुस्तफ़ा साहब ने ऑमलेट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। आया बड़ा फारिग इंसान, मैं ले जाऊं वेला ना हो तो। वजीहा इसकी नकल करती टप कर बुड़बुड़ाई। पुरान पर पुराना जोर से कहकर इसकी बुड़बुड़ाहट साथ बैठी माहीन और सामने बैठे माज ने बआसानी सुनी थी। माहिर ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई जबकि मौत ने बदला लेना जरूरी समझा। जोर से वजीहा के पैर पर अपना पैर मारा। आह वो कराई और एकदम खड़ी हुई। क्या हुआ? सलार ने परेशानी से पूछा। हाँ हाँ बताओ वजीहा क्या हुआ है? मौत ने संजीदगी से पूछा। वजीहा ने पहले साथ बैठी माहिन को देखा जो हंसी रोकने के चक्कर में बेहाल हो रही थी। फिर इसने माज की तरफ रुख करते हुए दांत पीस कर बोली। कुछ नहीं भाई, मुझे लगा टेबल के नीचे कोई कुत्ता आ गया है। वो देख मौत को रही थी पर क्या सलार से रही थी। इसकी बात पर सलार ने ना समझ आने वाले अंदाज में आईब्रो उठाई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता कि माज बोल उठा। सलार भाई वैसे आपने बताया नहीं कि आपने कुत्ते भी पालना शुरू कर दिए हैं? तिरछी आंखों से वजीहा को देखते हुए माज ने कहा। माज की बात पर पानी पीती मारिया को अच्छू लगा था। पाले नहीं है मगर रोजाना ही पड़ोस का कुत्ता हमारे घर में मौजूद होता है। वजह की बात पर सभी ने कहका लगा और इसी लम्हे वहां दाखिल होते आशिर की निगाहें मारिया के खिलखिलाते चेहरे से टकराई थी। वही लम्हा था कि खुद पर जमी सर्द निगाहों के एहसास से मारिया ने इसकी तरफ देखा था और इसे इनमें कुछ भी नजर न आया, बस खालीपन था। वो अभी तक इसकी तरफ देख रही थी जबकि वो टेबल पर मौजूद सब लोगों को खुदाफिज कहकर जा चुका था। और तो इसे तब आया जब बराबर बैठी मिशाल ने इसे टोका दिया। कहाँ गुम है आप ही? आशिर भैया जा चुके हैं, मिशाल ने शरारत से कहा। इसकी बात पर मारिया सर झुका गई। मिशाल ने तो इसे इसकी शर्म समझा जबकि इसने अपने आंसू छुपाए थे। वैसे अंकल आपने इस मोटी को डांटा नहीं? इसने मुझे कुत्ता कहा। माँ से जब खामोशी हजम ना हुई तो दोबारा बोल उठा। मैंने कब कहा, खुद ही कह रहे हो। वजीहा ने जूस पीते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। इसकी बात पर माँ तिल मिलाया। सबको बातों में मसरूफ देखकर मारिया उठी और जाने लगी। मारिया नाश्ता तो कर लो सही से। इसे जाते देखकर आशिर की मामा बोली। जी मैंने सही से नाश्ता किया है छोटी मम्मी। वो वहीं बैठ खड़े खड़े धीमी आवाज में बोली। नजरें नीचे थी, वो अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा चलो तुम जाओ, इनके कहते ही फौरन वहां से चली गई। महविश कहाँ है? मुर्तजा साहब ने पूछा। उसका दोस्तों के साथ प्रोग्राम था तो वो सुबह सुबह निकल गई। महविश की मॉम ने जवाब दिया। ये कोई तरीका नहीं है, आप इसको समझाएं कि बंदा कम अज कम घर वालों के साथ एक टेबल पर खाना पीना ही कर लेता है। मर्ती मर्ती साहब ने
مرتضی صاحب نے تنبیہ کی جس پر ان کا منہ بن گیا۔ ان کو یوں سب کے سامنے مہوش پر تنبیہ اچھی نہیں لگی تھی، خاص طور پر سالار کے سامنے۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی اور ان کا چپ چاپ اٹھ کر جانا سب نے محسوس کیا تھا۔ ماریا کمرے میں آئی، آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے عاشق کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک نے اسے ہوش دلایا۔ اس نے فوراً آنسو پونچھے۔ آ جائیں۔ باہر جو کوئی بھی تھا وہ اس کی اجازت کے انتظار میں تھا۔ اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور پلٹا۔ وہ عاشق تھا، دھیمے قدموں سے چلتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اس کو وہاں دیکھ کر گڑبڑائی تھی اور وہ سائیڈ سے ہوتی دروازے کی طرف بڑھی دروازہ کھولنے کے لیے، لیکن اگلے ہی پل اس کا بازو اشر کی سخت گرفت میں آ چکا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں صرف بات کرنے آیا ہوں اور بات کر کے چلا جاؤں گا؟ وہ اس کا بازو چھوڑ کر دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا تھا۔ جی بولیں، اس شادی سے انکار کر دو۔ تیر پھینکا گیا جو دل کے آر پار بھی ہوا۔ جی دیکھیں ماریا، میرا تم سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، تم بہت اچھی ہو، پر میں عائشہ سے کمیٹڈ ہوں اور میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا کچھ سوچا بھی نہیں۔ ہم کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے، تو بہتر ہوگا تم خود ہی اس رشتے سے انکار کر دو۔ اور وہ مسالت کے انداز میں سے کہہ رہا تھا، ہر جملے کے بعد رکتا جیسے بہتر الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ تو یہ بات آپ کو چھوٹی ممی سے کہنی چاہیے تھی نا؟ نظریں جھکائے آنسو پیتی وہ بہت مشکل بولی۔ کہا تھا، پر وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں، اور میں نے زیادہ شور مچایا تو پاپا مجھ سے بدگمان ہو جائیں گے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم انکار کرو۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ بڑی صفائی سے اپنی مشکلات اس کے سر پر تھوپ کر بریل ذمہ ہو رہا تھا۔ ماریا نے بڑے ضبط سے اوپر سر اٹھایا اور بولی، میں انکار نہیں کر سکتی، یہ میرے بڑوں کا فیصلہ اور مجھے اپنے بڑوں کا فیصلہ قبول ہے۔ آپ اپنی پرابلم خود حل کریں، میں اس میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی۔ سوری، وہ قطعیت سے کہتی اسے باور کرا چکی تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، اور یہی بات اس کو آگ لگا گئی۔ عاشر نے اس کا بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ تم میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں، پھر بھی تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے مر رہی ہو۔ حقارت سے کہا اس نے۔ اس کی بات پر ماریا نے جھٹکے سے بازو چھڑایا اور پیچھے ہوتی چلائی، بے غیرت میں نہیں، بے غیرت آپ ہیں جو اپنے مطلب کے لیے ایک لڑکی کو ڈھال بنا رہے ہیں۔ ذرا شرم۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتی کہ عاشق کا بھاری ہاتھ اس کی گال پر پڑا۔ اب تم خود اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گی۔ وہ اسے وارن کرتا اس کے روم سے نکل گیا، اور وہ ابھی تک شوق میں تھی کہ وہ عاشر مرتضیٰ کے ہاتھ سے تھپڑ کھا چکی تھی، اور وہ رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ رہا تھا، اس کا دل ٹوٹا تھا، وہ تڑپ رہی تھی۔ ماہین موم کی آواز پر کچن سے آتی وہ پلٹی۔ جی بیٹا، ماریا کو دیکھنا ذرا، اگر وہ روم میں ہے تو اسے ذرا میرے پاس بھیجنا۔ جی اچھا۔ وہ یہ کہہ کر اوپر کی طرف بڑھ گئی، اور وہ اوپر ماریا کے روم میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر اٹھتے قدم رک گئے۔ ماریا زمین پر بیٹھی بلک رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دوڑی۔ ماریا، ماریا، یہ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو میری جان؟ ماہین نے اس کے پاس بیٹھتے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ ماریا فوراً سے آگے بڑھ کر ماہین کے گلے لگی۔ بھابھی، وہ عاشر آئے، وہ کسی اور سے پیار۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولتے ایک دم چپ ہو کر شدت سے رونے لگی۔ بھابھی ایسا کیوں؟ وہ بہت رو رہی تھی۔ ماہین نے اسے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھایا، پانی پلایا تو وہ کچھ سنبھلی۔ بھابھی آپ کو پتہ ہے جب میں چھوٹی تھی نا، تب ایک بار چھوٹی امی نے کہا تھا کہ ہمارے عاشر کی دلہن تو صرف ماریا بنے گی۔ پھر امی ابو کے منہ سے بھی ہمیشہ اپنے اور عاشر کے متعلق یہی سنا۔ ہاں، باقاعدہ رشتہ طے نہیں ہوا تھا، لیکن زمانی طور پر بات پکی تھی۔ ہمیشہ اسے ہی سوچا، اسے ہی چاہا، اور آج وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ جی آج کے لیے اتنا ہی بس۔ اس کا کل نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ لاسٹ پارٹ ہوگا، اور وہ میں لے کر کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔